எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ஷோபா. நான் ராஜகீழ்ப்பாக்கத்துலேருந்து பேசுகிறேன். ஓகேவா, நான் வந்து இப்போ பிரவேஷிகா 1 பேப்பர் பற்றி மாடல் பேப்பர் பற்றி பேச போகிறேன். இது வந்து டோட்டல் 100 மார்க்ஸ் பேப்பர். ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரில் உங்களுக்கு 10 கொஷின்ஸ், மெயின் கொஷின்ஸ் 10 இருக்கும். ஒரு கொஷின்ஸ்லையும் எவ்வளோ எழுதணும், எவ்வளோ மார்க்ஸு, அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு இது 3 ஹவர்ஸோட பேப்பர். ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் இஸ் ஃபார் 3 ஹவர்ஸ். இது வந்து ஜஸ்ட் மாடல் பேப்பர், ரமணாவோடது மாடல் கொஷின் பேப்பர் பற்றி நான் சொல்கிறேன். இதில் फर्स्ट रोमन வந்து किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक या 2 वाक्य में. फर्स्ट रोमन எப்படின்னா 1 or 2 சென்டென்சஸில் எழுதணும். இதில் 8 கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. 8 கொஷின்ஸ்லேருந்து 5 கொஷின்ஸ் எழுதினா போதும். ஸோ ஈச் கொஷின் கேரிஸ் 2 மார்க்ஸ். ஸோ 5 எழுதினா 5 into 2 is 10 மார்க்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு 4-5 क्वेश्चंस நான் உங்களுக்கு படித்து कामिக்கிறேன். अभी न होगा मेरा अंत कविता में पुष्प पुष्प शब्द किसको सूचित करते हैं. सेकंड क्वेश्चन, अग्नित लघु दीप यह उदाहरण किसको सूचित करते हैं. देन जिसने अपनाया त्याग इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है. फोर्थ क्वेश्चन, यशोधरा के दुख का प्रमुख कारण क्या है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर लोगों की महिमा के लिए कवि किन किन का साक्षी मानते हैं. भारत भूमि के गौरव बाल क्या है. देन पंत जी कटी के रूप में किसे मानते हैं. छवि कहाँ से आई. कर चले हम फिदा के अनुसार जिंदगी किससे गले मिल रही है. अमन की दुनिया के अनुसार क्या हर कोशिश कामयाब होती है. सांस क्यों आस से सुर मिलाने लगी. कैफी आजमी के अनुसार कौन सा मौसम रोज नहीं आता. कवि डॉक्टर सुब्रमण्य विष्णुप्रिया किसको राष्ट्र प्रेमी का मधुर वाहिनी कहते हैं. कविचर माखनलाल चतुर्वेदी चिड़िया का वर्णन कैसे करते हैं. पंत जी भारत के हृदय हार के रूप में किसे मनाते हैं. रामधारी सिंह दिनकर जी अपने कलम से किसके बारे में बोलने का निर्देश देते हैं. இதே மாதிரி ஒரு இதுலேருந்து 8 क्वेश्चंस கேட்பாங்க. 8லேருந்து நீங்கள் 5 क्वेश्चंस எழுதணும். ஸோ இட் கேரிஸ் 10 மார்க்ஸ். செகண்ட் रोमन इज किसी एक कवि का परिचय. कवि मीन्स पोएटोட परिचயம் தரணும். फॉर एग्जाम्पल माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, कैफी आजमी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमतीन्द्र இது 5 மார்க்ஸ். ஏதாவது ஒருத்தரை பற்றி எழுதணும். இட் கேரிஸ் 5 மார்க்ஸ். थर्ड रोमन किसी एक कविता का सारांश, कविதையோட सारांश எழுதணும். இதில் ஃபார் एग्जाम्पल ஏதாவது ஒன்று தான் எழுதணும். இட் கேரிஸ் 10 மார்க்ஸ். भारत गीत, यशोधरा का विलाप, तराना ए हिंदी, दुधिया चांदनी सावली हो गई, कलम आज उनकी जय बोल. 3 கேட்பாங்க. 3லேருந்து 1 எழுதணும். इट कैरीज 10 मार्क्स. फोर्थ वन इज किन्हीं 2 पद्यांश का संदर्भ सहित भाव लिखिए. पैराग्राफ्स தந்திருப்பாங்க அந்த போயம்ஸ். அதுந்து நீங்கள் மீனிங்ஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எழுதணும். அதில் 4 தந்திருப்பாங்க. 4லேருந்து 2 எழுதணும். இட் கேரிஸ் 10 மார்க்ஸ். ஸோ ஈச் கேரிஸ் 5 मार्क्स. देन फिफ्थ रोमन, किन्हीं 2 पद्यांश का संदर्भ सहित भाव समझाइए. 2 पद्यांश का संदर्भ सहित 2 पैराग्राफ मीनिंग्स அந்த பேராகிராஃப் தந்துப்பா. அது வந்து மீனிங்ஸ் எழுதணும். சந்தர்ப் சஹித் भाव, வாட் டஸ் இட் எக்ஸ்பிரஸ், அதை பற்றி எழுதணும். இதுலேயும் 4 தந்திருப்பாங்க. 4லேருந்து 2 எழுதணும். இட் கேரிஸ் 10 மார்க்ஸ். சிக்ஸ்த் ரோமன் கேரிஸ் 5 மார்க்ஸ். ஸோ 6th ரோமனில் வந்து தோஹா 2 தோஹா கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்தூரி குண்டல பஸ்ஸே டேஷ் டேஷ் டேஷ். நீங்கள் தோஹா வருஷம் எழுதிட்டுருக்கேன். இட் கேரிஸ் 5 மார்க்ஸ். ஓச்சா காம் டேஷ் ந கயோ. அப்புறம் ஜப் மே டேஷ். அதே மாதிரி தேர்ட் ஒன் பாவஸ் தேக்கி டேஷ் பூச்சத் கான். இதே மாதிரி ஒரு 2 தந்திருப்பா. அதுலேருந்து அந்த 2த்தையுமே எழுதணும். So it carries 5 marks. So you have to learn all the dohas. Then 7th Roman is किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक या 2 वाक्य में
லிக்கியே. இந்த கொஷின் ஆன்சர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் எழுதணும். 8 கொஷின்ஸ் வந்திருக்கா, அதுலேருந்து 5 கொஷின்ஸ்க்கு எழுதணும். இட் கேரிஸ் 10 மார்க்ஸ். ஸோ இதில் ரொம்ப ஈஸி தான், 1 or 2 சென்டென்सेஸில் தான் எழுதணும். वाजश्रवा ने नचिकेत को किस दान के रूप में दिया, क्यों? लेखिका ने अपने 3 बच्चों के नाम क्या क्या रखे थे? बिक मंगे बच्चों के बाप क्यों जेल गए? महात्मा गांधी का सपना क्या था? दुकानदार ने ग्राहक को क्यों बेवकूफ़ समझा? उस जमाने की प्राकृतिक भाषाएं क्या क्या थी? छोटा जादूगर कैसे दिखाई पड़ता था? जूरी काची के दोनों बैलों का नाम क्या था? यज्ञ की समाप्ति पर वज्रश्व का निश्चय क्या था? 3 बिक मांगे बच्चे कौन कौन थे? लेखिका क्यों जेल गई? लेखिका के अनुसार सच्चा मित्र कौन है? पहल किसने और कब स्वच्छता अभियान शुरू किया? पुराने ज़माने में भी स्त्रियां अपनी पांडित्य प्रकट करती थी. 100 उदाहरण समझाइए. हिंदी की कितनी बोलियां के नाम इस पाठ में दिए गए हैं? இதுலேருந்து நான் இப்போ நிறையா கொஷின்ஸ் படித்தேன். ஒரு 14 கொஷின்ஸ் படிச்சிருப்பேன். ஆனால் உங்களுக்கு 7 to 8 கொஷின்ஸ் தான் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க. அதுலேருந்து யூ ஹாவ் டு ரைட் 5 கொஷின்ஸ். ओके. 8th रोमन इस किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 5-5 वाक्यों में लिखिए. इट कैरीज 15 मार्क्स. அதில் ஒரு 5 கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. 5லேருந்து 3 கொஷின்ஸ் எழுதணும். எல்லாத்துக்குமே 5 3 15 5 மார்க்ஸ். 5 சென்டென்சஸ் எழுதணும் இல்லையா, அதனால 1 சென்டென்ஸ் கேரிஸ் 5 மார்க்ஸ். ஸோ அதனால அது படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் நான் ஒரு 5 to 6 கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம் தரேன். மாடல் नचिकेत के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए. लेखिका को आखिर बच्चों को समाचार कैसे मिला? लेखिका को आखिर बच्चों का समाचार कैसे मिला? स्वच्छता अभियान को कार्यान्वयन करने के सही उपाय क्या क्या हैं? छोटे जादूगर के खेल के बारे में लिखिए. यूनिकोड क्या है? बेचारा भला आदमी कौन बन जाते हैं? लेखिका और लेखक और लेखिया और लेखिका के संबंध के बारे में लिखिए. लेखक की साइकिल सवारी पहले दिन का अनुभव कैसा था? இதே மாதிரி ஒரு 5 கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பேன். இதுலேருந்து யூ ஹாவ் டு ரைட் 3 கொஷின்ஸ் விச் கேரிஸ் 15 மார்க்ஸ். 9th रोमन इस किसी एक पाठ का सारांश लिखिए. அதில் ஒரு 3 கேட்டிருப்பா. இட் கேரிஸ் 10 மார்க்ஸ். ஒரு பாட்டோட சாராंश எழுதினா போகிறோம். नचिकेत, स्वच्छता अभियान, 2 बैलों की कथा, छोटा जादूगर, यूनिकोड. ओके. 10th and the last रोमन किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्यय कीजिए. संदर्भ सहित व्यय எழுதணும். ஓகேவா? இட் கேரிஸ் 15 மார்க்ஸ். இதில் 5 கொடுத்துருப்பா. 5லேருந்து 3 அகெயின் 3 மார்க்ஸ் ஃபார் ஈச். ஸோ இதுவும் கொஞ்சம் நன்னா படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? पिताजी दक्षिणा में तो यजमान आप अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं. पिताजी दक्षिणा में तो यजमान अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं. आपने तो ऐसे गायें दी है जिनका आपके लिए कोई उपयोग ही नहीं रह गया है. इससे आपकी पुण्य नहीं मिलेगा, आपको पुण्य नहीं मिलेगा. सेकंड वन, जेल के बाहर भाई साहब वो तो भगवान के हैं, आपने कैसे कहूँ, अपने कैसे कहूँ. थर्ड वन, जिस समय आचार्य ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा सांस्कृतिक न थी. पर भी होकर यह हत्या कर सकती है, इसका मुझे विश्वास न हुआ. आत्मा ने तो कभी पैदा होती ही नहीं, न मरती है, वह अजर अमर है
और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहती है। चोर ही सबसे अधिक इस बात का प्रचार करते हैं कि इस महान देश में पहले लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे. இதே மாதிரி ஒரு 5 questions தந்திருப்பாங்க. இதிலிருந்து நீங்கள் 3 எழுதணும். Okay, so it carries 15 marks. All the best to all the children, those who are writing their exams. This is for the paper 1.